A very formal good morning again. So we are just moving with the chapter in the earliest days, right? So in our yesterday's class, what we had studied about the houses, drains and streets. I had already explained you people in yesterday's class how the houses were either two stories or single story, right? And the rooms were built around the courtyard. These houses had the separate bathing area, right? And some even had the wells from which the water was supplied, right? As far as the drains is concerned, drainage system was perfectly managed, perfectly made at that time, right? How it was made कि ये जो drains होती थी ये straight होती थी, थोड़ी सी slope होती थी so that the water could flow easily. These drains were covered, right? These drains were covered और ये इस in drains में at some intervals the inspection holes were there so as to clean the drains. आज भी हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काफी हद तक हम ऐसे ही फॉलो करते हैं. घरों के अंदर से जो पानी था वो छोटी ड्रेन से बाहर निकलता था और बाहर जाके ये बड़ी ड्रेन्स, ये छोटी ड्रेन्स जो होती थी घरों की, ये बाहर जाके मेन स्ट्रीट की बड़ी ड्रेन्स को ज्वाइन कर, राइट. और इवन ये जो these drains were there, as mentioned, smaller drains they used to join the bigger ones. These were covered with the inspection holes. And even as far as the streets are concerned, streets जो थी they cut each other at 90-degree angle. Straight, बड़ी ही clear cut streets बनी होती थी. जैसे मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था कि the way the streets are there in urban estate, right? अर्बन एस्टेट में जैसे कि स्ट्रीट्स बनी हुई हैं, आप कहीं से भी कहीं पे मुड़ जाइए एकदम यू विल सी बहुत स्ट्रेट स्ट्रीट्स हैं और सारी राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर, दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. और ये इंडिकेटर होता है इंडिकेटर ऑफ अ परफेक्ट और अ गुड टाउन प्लानिंग, राइट? ये परफेक्ट टाउन प्लानिंग का एक इंडिकेटर होता है, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो उस समय की जो streets थी they were perfectly made. Yesterday I had told you people that I will show you the video. So as I have said, yes, we have the video that I'm going to play it for you people. So as you can see here कि जैसे how these streets are there, as I have already explained you people that these streets used to cut each other at right angle, which you can easily see here. Now you can see here these areas जो आपने यहाँ पर देखे हैं, this is the higher level, right? Higher level पे बना हुआ है, whereas जो आपने अभी पहले देखा that was at the lower level. It means that this was a citadel, right? This was a citadel which was there constructed at the higher level, but this area was smaller. This area was smaller as compared to the lower levels, right? So we can see here in this video also कि the citadel, as mentioned, that this was made at the higher level, whereas the other areas which were meant for the common people, that were made at the lower level. You can easily see here in this video, right? So higher level was for the ruling class, whereas the lower level was for the common people, right? I will just play it again.
See here now, right? Now you can see here कि this area is a larger one. This was meant for the common people to live, and you can even see how the streets are made here. यहाँ की streets देखो, गलियां देखो कैसी बनी हुई है, एकदम straight, right angle पे एक दूसरे को intersect कर रही हैं, and you can even see कि कितना planned है ये. It is so much a planned work. राइट आप इसको देखिए कहीं ये नहीं कह सकते कि अनप्लान्ड कहीं भी कोई भी घर बना लिया और ये टाउन बन ये आर्किटेक्चर जो था दैट वाज वेरी वेरी वेल प्लान्ड. So as mentioned that the city could have around 40,000 people. So 40,000 people का होना, I mean it's a great number. आज के हिसाब से अगर हम लोग ना भी देखें तो उस टाइम आज से अराउंड 5,000 ईयर पहले how the people they used to live और उस टाइम 40,000 people की जो गैदरिंग है या जो उनको एक प्लान्ड एरिया में उनको सेटल करना दैट must have been a challenge. So now you can clearly see in this picture upper town which was a citadel, the lower town which was there for the common people, and the citadel or the upper town was there for the ruling class, right? So ये clear division आप देख सकते हो, right? So in this way the town was planned. रूलिंग क्लास कौन सी है? राजा महाराजा. Now you can see here ये बाहर ये जो व्हाइट कलर का आपको नजर आ रहा है दिस इज द ड्रेनेज सिस्टम, राइट? दिस वन ये देखो ये ड्रेन सारी ड्रेन्स हैं. कैसे ड्रेन्स जो है ये सारी कवर्ड हैं. एंड हियर यू कैन सी दिस इज द इंस्पेक्शन होल. ये देखो छोटे छोटे इंस्पेक्शन होल हैं जहां से ड्रेन्स जो थी उन्हें क्लियर किया जा सकता, राइट? उन्हें साफ किया जा सकता. Here also I would just like to explain it to you people कि how see मैंने जैसे कहा था these are the houses. घरों से जो छोटी ड्रेन्स होती थी they used to join the bigger drains of the streets. यहाँ you can see यहाँ भी है, यहाँ भी है, राइट? घरों के बाहर से जो ड्रेन्स होती थी, छोटी ड्रेन्स जो होती थी, स्मॉलर ड्रेन्स, they used to join the bigger drains, right?
So you have seen how these streets and the houses these were made, right? So just now as we have seen in the video itself, कितने planned ढंग से ये जो city थी वो बनाई गई थी. Anyhow, उसके बाद we had also studied that these people of these Harappan cities or the Indus Valley civilization, these people were the specialists in their work. These people were specialists in their work, जहां पर ये metal का काम भी करते थे और ये craft persons भी थे. These were they used to make their jewelry, they used to make the weapons, they even used to make the weights, the measures, the images, and these people were specialists in their work, right? जो वो एक काम जो कर रहा है तो उसको स्पेशलाइज कर रहा होता था, वो वही काम करता था, राइट? उससे क्या होता है, जब हम एक ही काम बार बार करते रहते हैं तो हम उसको स्पेशलाइज कर लेते हैं, राइट? तो हम फिर वो काम जो है वो बहुत परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं. तो जैसे कल आप लोगों को मैंने दिखाया था कि वन इमेज वाज देयर, वन आइडल वाज देयर, एक मूर्ति मिली है उस समय की. सो उस मूर्ति को देखिए यू कैन सी कि कितने यू कैन से परफेक्टली द फेशियल फीचर्स were indicated on that particular idol, right? So आज के टाइम पे भी हम सोचे कि हम इतना परफेक्टली बना सकते हैं, लेकिन ठीक है, आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, राइट? हमारे पास ऐसे बहुत सारे डेवलप टूल्स हैं जिससे कि हम लोग ऐसी चीजें बना सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द टाइम 5000 years ago when such technology was not there? बट स्टिल उस समय की जो चीजें हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, दैट प्रूव्स कि उस समय के जो लोग थे, दे वर स्पेशलिस्ट इन देयर वर्क, राइट? एंड दे वर वेल वर्स्ड इन द यूजेज ऑफ बीट कॉपर और ब्रॉन्ज और द गोल्ड एंड सिल्वर. इन सभी मेटल्स को यूज करना उन्हें बहुत अच्छे से आता था. उससे वो टूल्स भी बना लेते थे, उससे ऑर्नामेंट्स भी बना लेते. और ऑर्नामेंट जरूरी नहीं है कि गोल्ड और सिल्वर के ही बनते हो, बीट से भी ऑर्नामेंट्स बन जाते थे, क्ले के ऑर्नामेंट्स बना लेते थे वो लोग, राइट? इतने ज्यादा परफेक्टली दे यूज्ड टू वर्क, राइट? सो इवन उस समय ये जो कई बर्तन ऐसे मिले हैं जो उस समय बेक करके बनाए जाते, राइट? कि उन्हें बेक कर दिया जाता था और यू कैन से कि उसके बाद देवर मेड इन सच अ वे, उसके बाद उसको पॉलिश किया जाता था और वो इतना पॉलिश कर दिया जाता था कि दैट रिजल्टेड इन अ वेरी शाइनी एंड ग्लासी सरफेसेस, राइट? तो बीड्स है, बैंगल्स है, ये सब बनाने के काम आता था. आपको अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ स्पेशली राजस्थान में, वहां पे एक तरह का मटेरियल होता है जिसकी ज्वेलरी बनाई जाती है. उस मटेरियल को कहते हैं लाख. उस मटेरियल को कहते हैं लाख. और उससे जो ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं वो बड़े शाइन करते हैं, राइट? तो ऐसे ही यहाँ पर भी जो लोग थे, जो हड़प्पन लोग थे, दे यूज्ड टू मेक सच टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स. यहाँ पर एक आपके कॉलम भी है, दैट इट इज द फायंस, राइट? फायंस जो था ये एक तरह का मटेरियल होता, राइट? एंड दैट मटेरियल वाज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड, राइट? क्या होता था कि इसके लिए गम जो होती है, गम हम लोगों को पता है कि जब आप ग्लू गन आजकल कितनी यूज करते हो ना, जब ग्लू गन से आप ग्लू को जब निकालते हो, जब वो ग्लू ड्राई हो जाती है तो आपने नोट किया वो शाइन करती है, वो शाइन करती है. तो उस समय भी क्या था कि गम जैसा एक जो मटेरियल था, गम जो था, इट वाज यूज्ड टू शेप द थिंग, और यू कैन इसकी कोटिंग कर दी जाती, राइट? उस कोटिंग से क्या होता था कि दैट थिंग यूज्ड टू शाइन, राइट? तो ऐसे ही जो फायंस था ये गम से बनाया जाता था, एक तरह का मटेरियल था जो जिसमें गम का यूज होता था, जिससे ये जो मटेरियल था ये शाइन लाने के लिए, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर शाइन लाने के लिए ये यूज किया जाता, राइट? सो
many of the articles have been found by the archaeologists which have been made by this artificially produced material known as the faience, right? और फाइंस के टेराकोटा के कुछ ऐसे टॉयज मिले हैं, उससे भी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने इस चीज को अज्यूम किया है कि ये जो टॉयज हैं जिसमें स्पिंडल वूल्स, स्पिंडल क्या होता है, जिससे धागा बनाता है, धागे से कपड़ा बनाया जाता है, राइट? क्योंकि आजकल तो इतनी सारी मशीन्स होती है जिसमें जो क्लॉथ है वो बड़ा इजीली बन जाता है, पहले ऐसी मशीन्स नहीं होती, सो द क्लॉथ वाज हैंडमेड, राइट? सो उसके लिए क्या होता था, उसके लिए स्पेशली एक हैंडमेड मशीन होती है, दैट वाज नोन एज द स्पिंडल वूल्स, राइट? स्पिंडल में कॉटन को डाला जाता था, उससे धागा बनाया जाता था और उसके बाद फिर क्लॉथ बनाया जाता, राइट? तो ऐसे टॉयज मिले हैं, स्पिंडल वूल्स के टॉयज मिले हैं या कुछ ऐसे खिलौने मिले हैं जिससे कि हम ये हमारे हिस्टोरियंस ने अज्यूम किया है कि ये सारी चीजें जो थी वो यूज की जाती थी। तो बॉटम लाइन सेज कि टेक्नोलॉजिकली या टेक्निकली भी ये लोग जो थे ये बड़े एडवांस थे। आज से 5000 साल पहले के बारे में अगर सोचें तो उस हिसाब से भी टेक्निकली दीज पीपल वर वेरी साउंड। सो ये जो सिटीज थी दीज वर वेल एडवांस्ड सिटीज। So as yesterday I had said कि हम लोग रॉ मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो रॉ मटेरियल्स के बारे में है दिस वी विल स्टडी इन योर टुमारोज क्लास। बस मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग चीजें बनाते थे, रॉ मटेरियल जो था वो बड़ी दूर दूर से आता था। रॉ मटेरियल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में वर्ड यूज करते हैं कच्चा माल। अब अगर आपने इफ यू वांट टू ईट योर मैगी, राइट, तो मैगी ऐसे तो पैकेट से खाने जाओगे ना, तो आप क्या करोगे, मैगी बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है दैट इज वो जो एक रॉ कच्ची मैगी होती है, मैगी मसाला है, वाटर है, गैस है, राइट, ये सब क्या है, रॉ मटेरियल्स। इन सबको जब इकट्ठा करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तब जाके आपकी मैगी तैयार, राइट? सो किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें भी नीड रॉ मटेरियल्स। ऐसे ही कोई चीज नहीं बन जाती है या हमारे पास इवन जो आपने पेंसिल यूज कर रहे हो, आप बुक्स यूज कर रहे हो, वो ऐसी रेडीमेड नहीं बन गई है, वो किसी ना किसी चीज से बनी है, किसी ना किसी चीज का चेंज फॉर्म है, राइट? जो शर्ट आप लोगों ने पहनी हुई है दैट इज द चेंज और यू कैन से प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ कॉटन। कॉटन का प्लांट होता है, उसको प्रोसेस करने के बाद आप तक ये कपड़ा पहुंचा। सो रॉ मटेरियल जो है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी ऑफ द थिंग। तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल आता था, मैं जैसे मैंने बताया कि बहुत दूर से आता था, दूर मीन्स की नॉट ओनली इंडिया बट इंडिया के बाहर से भी आता था, से अफगानिस्तान है, ओमान है, ईरान है, ऐसी जगह से, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका। उस समय जब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इतने डेवलप नहीं थे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तो होते ही नहीं थे, बट स्टिल these people could manage to get the raw materials from distant areas, right? So which raw materials were there, that they got from the distant areas, that we will cover in tomorrow's class.